You are watching News 9. I'm Krishna Kumar. In its first press conference since the Pahalgam terror attack, the BSF has confirmed the scale and impact of Operation Sindoor, India's military response to cross-border terror and Pakistani provocation. On the 8th of May, amidst heightened tensions following the Pahalgam terror attack, Indian border surveillance picked up coordinated movement near the international boundary. The BSF, or the Border Security Force, says it acted with calculated precision, launching preemptive strikes before Pakistan could initiate hostilities. Pakistan reacted by firing in the Akhnur sector on the 9th and the 10th of May. But according to the BSF, its own targeting of Pakistani terror infrastructure had already been set in motion. भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट जो था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। The Border Security Forces IG Jammu Shashank Anand revealed that 70 Pakistani border outposts and 42 forward locations were destroyed. Among the most significant hits was an ISI launch pad opposite the Sundar Bani sector. The BSF also confirmed that women personnel fought on forward posts during the operation. बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। Now, between the 7th and the 10th of May, Pakistan attempted ceasefire violations and infiltration via Sialkot. India not only foiled those attempts in the Samba sector, but also destroyed Lashkar launch pads in Luni and Maspur, killing over 20 terrorists. Pakistani drones were intercepted and significant damage was inflicted on enemy surveillance and communications infrastructure as well. With Operation Sindoor, the BSF did not just hit back, it set new benchmarks in border defense with women soldiers on the front lines and Pakistan's terror infrastructure in ruins. Meanwhile, News 9 spoke to BSF's women personnel who fought on forward duty posts during Operation Sindoor. Assistant Commandant Neha Bhandari commanded a forward post
Constable Manjeet Kaur, Constable Malkeet Kaur, Constable Jyoti, Constable Sampa and Constable Swapna and others fought on forward posts against Pakistan during this operation. Let's listen in to those brave officers. ऑपरेशन सिंदूर में ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ की महिला कमांडोज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस समय मेरे साथ वो महिला जवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था मैम जब पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा था और किस तरीके से आपने जवाबी कार्रवाई? जी सर, जैसे उधर से फायर आया, हमने भी अपनी फायर खोल दी। दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। दोपहर के दिन में फायर हो रही थी, दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। हमने सभी मोर्चों पे फायर शुरू कर दिया था, इसलिए दोनों तरफ से हो रही थी। जैसे ये फायर उधर से ज़्यादा होने लगी, पाकिस्तान की ओर से फायर भी थोड़ी देर में बंद हो गई। फिर हमने भी अपना फायर रोक दिया, फिर दोनों की तरफ थोड़ी शांति हुई। कई पोस्टें भी तबाह की गई। हाँ जी सर, हमारे जो सामने पोस्टें थी उनको तबाह किया गया। ऑफिसर की तरफ से क्या कहा गया और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कितना ज्यादा खास तौर पे पाकिस्तान पे गुस्सा था आप लोगों को? हमारे अंदर तो गुस्सा था उनके बारे में। फिर तब हमको हमारा ऊपर चार्जेस आया था कि जब फायर होंगे तो फायर खोलना है, तो वैसा फायर आया था, फिर हमने फायर खोला। कौन सी तारीख को ये फायर आए? 10 मई को। 10 मई को। जी सर। लगातार फायरिंग चलती रही। हाँ सर, दोपहर के 3:10 में तो फायर आया था हमारे पोस्ट में। तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि फायर को जब फायर से देना है, तो हमने दिया जवाब।